सिमरन वेलकम टू माय चैनल। आप आज एक्सरसाइज 1.4 ਦਾ 8th क्वेश्चन करांगे जो अपने पिछले ਲੈਕਚਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਡ ਐਕਸਰਸਾइज 1.4 ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 क्वेश्चंस ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ क्वेश्चन नंबर 8। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ क्वेश्चन ਕਰਵਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੀ एनसीईआरटी बुक्स ਚੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ क्वेश्चन सॉल्व करवानी है। देखो अपने को क्वेश्चन 8 करना है। अपने को स्टेटमेंट की है which of the following pair of set are disjoint। बच्चे disjoint set अपने को की हुंदा है अपने को दो सेट हुंदे सी जदों आपां उन्हां दे बिटवीन इंटरसेक्शन फाइंड करदे सी अगर अपने को इक्वल टू एम्प्टी सेट फाई आउंदा सी ओ कंडीशन हुंदी सी disjoint लई। देखो की हुंदा सी अपने को दो सेट हुंदे सी A ते B अगर आप उन्हां बिटवीन इंटरसेक्शन आ सिंबल हुंदा है पुट्ठी जू दा इंटरसेक्शन दा अगर ये इक्वल होंदा सी एम्प्टी सेट दी अपने को लो केस हुंदा सी डिसजॉइंट दा। इंटरसेक्शन आप बच्चे किवें फाइंड करदे आ अपने को इत्थे दो सेट हुंदे ने अगर उन्हां दे बिटवीन कोई एलिमेंट कॉमन आंदा ओनू आप कहंदे सी आप इंटरसेक्शन फाइंड कीता है। ਆਪਾਂ इंटरसेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਐਂਡ ਫਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਟ। ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਮਪਟੀ ਵਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪਟੀ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਕਾਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਲਈ। ਐਮਪਟੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ the set which does not contain any element ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੈਟ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਸਜॉइंटली ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਾਈ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਜॉइंटली। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਟ ਗਿਵਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੈਟ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸੈਟ ਗਿਵਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਡਿਸਜॉइंट ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਡਿਸਜॉइंट ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੈਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫਰਸਟ ਸੈਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਸੈਟ ਜੋ ਹੈ the set of x such that x is a natural number and condition given ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੈਟ ਗਿਵਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। सो अपन ए सेट दे तो पता एलिमेंट्स की ने देखो 1 2 3 एंड 4 आपा इना दे बिटवीन की फाइंड करना है इंटरसेक्शन दा सिंबल की होंदा पुट्ठी जू एंड द सेट ऑफ x such that x is natural नंबर किहड़े नंबर हुंदे ने बच्चे ओ नंबर जो 1 तो स्टार्ट हुंदे ने अप टू इनफिनिटी तक जांदे ने मींस इनफिनिटी नु अप्रोच करते हैं एंड कंडीशन की हुंदी अपने कोल कंडीशन देख के ही आपा एलिमेंट्स लिखने ने। हुन कंडीशन अपने कोल की है जो x दी वैल्यू आ ओ ग्रेटर और इक्वल टू 4 है ग्रेटर x दी वैल्यू 4 दे इक्वल भी है ते 4 तो वड्डी भी है एंड लेस देन इक्वल टू 6। आ जो सिंबल आपा इंटरवल कीता सी इंटरवल वाला लेक्चर दे विच मैं तुहानू दस्सिया है ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੀਨਸ 4 ਤੇ 6 ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ x ਦੀ ਜੋ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਔਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 4 ਹੋਵੇ ਮੀਨਸ 4 5 ਔਰ 6 ਆ ਤਿੰਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੈ। ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। इनका अपने को इंटरसेक्शन की आ रहा है मींस इना विच कॉमन की है। हुन इना दे विच देखो 1 भी कॉमन ही है दोवां सेट दे विच 4 कॉमन है मींस दोवां सेट दे विच 4 प्रेजेंट है मींस इनका इंटरसेक्शन की हो गया
इंटरसेक्शन दे विच आपां कॉमन एलिमेंट देखना है। हुण दोवां दे बिटवीन कॉमन की है 4, सो इन दोवां दे बिटवीन 4 कॉमन है, सो 4 इक्वल्स टू 5 नॉट। हुण जेड़ा 4 है जो इंटरसेक्शन दी वैल्यू आई वो 5 दे इक्वल है नहीं है। जदों नॉट इक्वल हुंदी है ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਕੇ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟਲੀ, ਸੋ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਹ ਨੋਟ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ। ਦਿਸ ਪੇਅਰ ਆਫ ਸੈਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਥੱਲੇ, ਦਿਸ ਪੇਅਰ ਆਫ ਸੈਟ ਇਜ਼ नॉट डिसजॉइंट। ये डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट। क्लियर? ओवी आप कंडीशन देखनी है डिसजॉइंटली कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 होना चाहिए डिसजॉइंट ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟ ਹੈ ਡਿਸਜॉइंट ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਜॉइंट ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਗਿਵਨ ਨੇ। फर्स्ट दी एलिमेंट ने ए ई आई ओ यू एंड सेकंड सेट दी एलिमेंट ने सी डी ई एफ। इन्हां दे बिटवीन भी आपां की करांगे, इंटरसेक्शन फाइंड करांगे। आ कंडीशन फाइंड करनी है। मींस मान लेनी अपने कोल ए सेट है ते बी सेट है, इन्हां दे बिटवीन आपां की करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना। देखो इंटरसेक्शन दा सिंबल की हुंदा, पुट्ठा यू, सी डी ई एंड एफ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। देखो इन्हां दे बिटवीन कॉमन एलिमेंट है कोई, इन्हां दोवां सेट दे बिटवीन अपने कोल कोई भी कॉमन एलिमेंट है। देखो हुण जेड़ा ई है ते इहदे विच भी ई प्रेजेंट है, मींस कुछ तो कॉमन आ रहा है ना इहदे विच। कॉमन मतलब दोवां सेट दे विच कुछ सेम प्रेजेंट होवे, कुछ इक्को जिहा प्रेजेंट होवे। हुण ई जेड़ी दोवां सेट दे विच प्रेजेंट है मींस ए फिर नॉट इक्वल टू 5 हो गया। डिसजॉइंट के केस अगर 5 दे इक्वल होता तो डिसजॉइंट है। हुण इथे नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है, मींस ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, दिस पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट, सेट इज नॉट डिसजॉइंट। ये डिसजॉइंट नहीं है। अगर इक्वल टू 5 आ जाता तो डिसजॉइंट होना सी, बट इथे नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है तां करके डिसजॉइंट नहीं है। हुण आप बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। बच्चे हुण अपने को थर्ड पार्ट 8th क्वेश्चन का देखो। स्टेटमेंट दे विच आपां नूं दो सेट गिवन ने, दोवें सेट आपां नूं सेट बिल्डर फॉर्म दे विच गिवन ने। सो आपां इन्हां नूं फर्स्ट रोस्टर फॉर्म दे विच कन्वर्ट करना है। देखो फर्स्ट सेट विच आपां नूं की क्या है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। एक्स अपने को की एक इवन इंटीजर है। एंड दूजे सेट दे विच आपां नूं की क्या है, the set of x such that x is an odd integer। इंटीजर हुंदे की ने, पहला ए देखो इंटीजर की हुंदे हैं। अपनी कोई नंबर लाइन हुंदी है, ये अपनी कोई सेंटर तो विच 0 हुंदा है। जदों ਆਪਾਂ 0 तो राइट हैंड साइड वाल मूव करदे आ अप टू इनफिनिटी तक अपनी कोल पॉजिटिव इंटीजर्स होंदे ने। एंड जदों आप राइट हैंड साइड वाल मूव करते हैं तो अपने को की आंदे ने नेगेटिव वैल्यूज, मींस नेगेटिव इंटीजर्स।
ਈਵਨ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। देखो जिवें पॉजिटिव वैल्यू कोई भी ले लो 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट है ना, इंटरसेक्शन फाइंड करना। हुण इहदे विच नेगेटिव वैल्यूज ले लो अप टू -इनफिनिटी, क्योंकि इंटीजर की वैल्यू इनफाइनाइट तक हुंदी है, इनफाइनाइट की वैल्यू तो आपां नूं पता ही नहीं है, सो आपां डैश डैश ना रिप्रेजेंट करांगे। सो इन्हां दे विच इंटरसेक्शन फाइंड करना आपां। देखो इधर पॉजिटिव वैल्यूज है ते इधर नेगेटिव वैल्यूज दा मींस इन्हां दे विच कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। सो आपां जदों इन्हां दा इंटरसेक्शन फाइंड करदे आ, अगर कोई एलिमेंट अपने कोल कॉमन नहीं हुंदा, तुसीं कहोगे मैम इत्थे 3 है इत्थे भी 3 है। बच्चे एक गल ध्यान नाल देखो, इत्थे पॉजिटिव वैल्यूज ने, इत्थे अपने कोल पॉजिटिव 3 है एंड इत्थे अपने कोल नेगेटिव 3 है। सो इन्हां दोवां दे विच कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं आ रहा। अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा तो अपने कोल की होगा 5 मींस एम्प्टी सेट। जदों ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ इंटरसेक्शन कड्डिया ये अपने कोल की आ गया एम्प्टी सेट एंड डिसजॉइंटली भी अपने कोल आही कंडीशन हुंदी सी ना कि इक्वल टू 5 आवे, तां करके अपने कोल की होगा द पेयर ऑफ सेट इज डिसजॉइंट, सेट इज डिसजॉइंट, तां करके अपने कोल की आ गया डिसजॉइंट सेट आ गया क्योंकि इक्वल टू 5 आ गया। तां करके सेक्शन नंबर 9 स्टेटमेंट अपने कोल इफ ए अपने कोल इत्थे 4 सेट गिवन ने जो ए सेट दे एलिमेंट ने 3 6 9 12 15 18 और 21 ये ए सेट दे एलिमेंट ने एंड बी सेट दे एलिमेंट जेडे ने 4 8 12 16 और 20 एंड सी सेट दे एलिमेंट ने 2 4 6 8 10 12 14 और 16 एंड डी सेट दे एलिमेंट ने 5 10 15 और 20। ਆਪਾਂ ਆਹ ਸਾਰੇ फाइंड करने ने, आ अपने कोल 4 एलिमेंट्स दिते ने। हुण इत्थे अपने कोल माइनस दा सेट है, जिवें देखो क्वेश्चन नंबर 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने कोल की है ਆਪਾਂ a b फाइंड करना। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ माइनस आ ਆਪਾਂ इंट्रोडक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ अपने कोल ਕਾਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस फाइंड करना। दो सेट ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਟਵੀਨ डिफरेंस फाइंड करना। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ सेट ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ डिफरेंस फाइंड करना है। देखो ਆਪਾਂ a b करना, ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिफरेंस फाइंड ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਸੈਟ ਦਾ डिफरेंस फाइंड करना। बट ਇਹਦਾ ਮੈਥਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਚਾਕਲੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚੀਆਂ 2। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ डिफरेंस फाइंड करना ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ 4 - 2 = 2 ਚਾਕਲੇਟਸ। ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਵੀ ਆਪਾਂ डिफरेंस फाइंड करना है। देखो आप a b करना है, जो a सेट के एलिमेंट लिख लो पहला अपने कोल केड़े ने 3 6 9 12 15 18 और 21 एंड अपने कोल b सेट के एलिमेंट्स केड़े ने 4 8 12 16 और 20। हुण आप a b फाइंड करना है। देखो आप a b किवें फाइंड करदे आ, देखो इन्हां दोवां सेट दे बिटवीन कॉमन की अपने कोल जदों आपां डिफरेंस फाइंड करना दो सेट दे बिटवीन आपां कॉमन एलिमेंट्स नूं एक दूजे दे विचों माइनस करना हुंदा है। हुण इन्हां दोवां दे बिटवीन कॉमन की है ओनली 12 है, जो दोवां सेट दे बिटवीन कॉमन है मींस दोवां सेट दे बिटवीन आ रहा है 12, दोवां सेट दे विच सेम है। सो आपां जो 12 आ उहनूं छड्ड के बाकी सारे एलिमेंट्स लिख दांगे इहदे विच a दे, क्योंकि आप a b करना सी। अगर आप b a करना हुंदा फिर आप b वाले सेट ते काम करदे, फिर आप b वाले सेट दे बाकी एलिमेंट्स लिखदे। बट हुण आप a b करना सी। देखो जो सेम एलिमेंट ने कॉमन एलिमेंट जो डिफरेंस दे विच की हुंदा कॉमन एलिमेंट्स नूं माइनस करना हुंदा, कॉमन एलिमेंट्स माइनस कॉमन एलिमेंट दे विचों कॉमन एलिमेंट नूं माइनस करना हुंदा। आप ऐ भी कह सकते हैं आप 12 चों 12 माइनस करता अपने को 0 बची, तां करके आप इत्थे 0 नहीं लिखा।
ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਣੇ ਨੇ A ਵਾਲੇ ਸੈੱਟ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ A - B ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ B - A ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ B ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੱਲੇ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अपना कंप्लीट है। हुण आपां करते हैं A - C। हुण आपां A सेट दे विचों C सेट ते माइनस करना है। देखो किवें करांगे, किवें डिफरेंस फाइंड करांगे इन्हां दा। A - C। हुण आपां A - C करनी है। A सेट दे एलिमेंट्स किहड़े ने अपने कोल 3 6 9 12 15 18 और 21 एंड अपने कोल C सेट दे एलिमेंट ने 2 4 6 8 10 12 14 और 16। ये अपने को दो सेट गिवन ने, आप इन्हां बिटवीन डिफरेंस फाइंड करना है। A - C फाइंड करना। हुण इन्हां दोवां सेट दे फर्स्ट स्टेप अपना की हुंदा है, इन्हां दोवां सेट दे बिटवीन कॉमन एलिमेंट्स देखने हुंदे आ आपां। हुण दोवां सेट दे बिटवीन अपने कोल की कॉमन आ रहा है, देखो दोवां सेट दे बिटवीन एक तो 6 कॉमन है अपने कोल, एक अपनी कोल 12 कॉमन है दोवां सेट्स के बिटवीन। जो कॉमन एलिमेंट्स ने उन्होंने आपां नहीं लिखना ते बाकी एलिमेंट लिखांगे। ऐ भी कह सकते हैं आप 6 चों 6 नु माइनस करता एंड 12 चों 12 नु माइनस करता, 0 बचा, तां करके नहीं आपां लिखिया। और जे ना भी समझ आवे आपां बाकी सारे एलिमेंट चक के लिख देने हैं, ओनली कॉमन एलिमेंट्स नहीं लिखने। देखो किहड़े एलिमेंट्स बचदे ने, 6 की है सेट दे विच कॉमन है, सो आपां 6 नु नहीं लिखना। then 9 then 12 की कॉमन है, इन्हों नहीं लिखना। then 15 18 और 21 ये अपनी कुल क्या आ गया, आंसर आ गया ए वाले सेट का। क्लियर। हुण आपां देखदे हां नेक्स्ट क्वेश्चन। आपां A - D फाइंड करना है। A - D थर्ड है अपनी कुल, आपां A - D फाइंड करना है। अपने को A सेट के एलिमेंट्स A नहीं ते D सेट के एलिमेंट देखो 5 10 15 और 20 ने। हुण इन्हां बिटवीन भी आपां की करना, ओवें डिफरेंस फाइंड करना। इन्हां दे बिटवीन कोई कॉमन एलिमेंट है, देखो जिहड़ा 15 है दोवां सेट दे विच कॉमन आ रहा है, सो आपां 15 चों 15 माइनस कीता, अपने कोल की बचा 0, तां करके आपां इहनूं कॉमन एलिमेंट नूं नहीं लिखना। हुण आपां की करी सी A - D फाइंड कर रहे सी, तां करके आपां इत्थे अपने कोल A प्रेजेंट सी, तां करके आपां ओनली A सेट दे ही एलिमेंट्स लिखांगे। की आ गया 3 6 9 12 18 और 21, 15 कॉमन सी तां नहीं लिखिया। हुण आपां नेक्स्ट देखदे हां क्वेश्चन नंबर 4th 9th क्वेश्चन दा क्वेश्चन पार्ट 4th च आपां की करना, B - A फाइंड करना है ना। B दे एलिमेंट्स किहड़े ने अपने कोल 4 8 12 16 और 20। हुण आपां B - A करना सी, तां आपां पहला B दे एलिमेंट लिख ले, फिर A दे लिख ले। A दे एलिमेंट्स किहड़े ने 3 6 9 12 15 18 और 21। हुण आपां इन्हां दे बिटवीन की करना है, डिफरेंस फाइंड करना। जदों आपां डिफरेंस फाइंड करना, देखो B दे A, हुण A कोई B दे एलिमेंट ने जो A दे विच भी प्रेजेंट है, ध्यान नाल देखो जो 12 है दोवां सेट दे विच की आ रहा, कॉमन आ रहा है। सो बाकी की बच्चे अपनी कोल 12 चों 12 माइनस कितना 0, सो उन्हें लिखने की जरूरत नहीं। कॉमन एलिमेंट नूं छड्ड के बाकी एलिमेंट्स किहड़े बचे ने 4 8 16 और 20। कॉमन एलिमेंट छड्ड के बाकी जिहड़े एलिमेंट बचदे ने वो इस सेट दा की होगा अपने कोल आंसर होएगा। क्लियर। हुण नेक्स्ट आपां करते हैं 5th पार्ट। देखो ध्यान नाल स्टेटमेंट अपन की गिवन है, आपां C - A करना। C एक तो देख लो सीधा, मैं बारी बारी एलिमेंट्स नहीं लिखूंगी क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी बन जाएगी। इथों देखो C ते A दोनों सेट दे बिटवीन की कॉमन है अपने कोल, ध्यान नाल देखो 12 कॉमन है दोनों सेट्स के बिटवीन, होर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो आपां C दे बाकी सारे एलिमेंट्स नूं उवें लिखांगे। की बचे अपने कोल 2 4 6 कॉमन है, देखो बच्चे 6 कॉमन है,
जो एलिमेंट कॉमन आ उन्होंने छड्ड के आपां बाकी सारे एलिमेंट्स लिखांगे 2 4 8 10 14 और 16 ये अपनी कोल की आ गया इनका आंसर आ गया जो कॉमन एलिमेंट से आपां उन्हां नूं नहीं लिखिया बाकी सारे एलिमेंट नूं लिखांगे हुण आपां इत्थे सी दे एलिमेंट्स से वर्क कीता क्योंकि आपां सी माइनस ए करना सी क्लियर हुण अपनी कोल नेक्स्ट पार्ट आपां डी माइनस ए करना हुण डी ते ए दे एलिमेंट देखो इन्हां बिटवीन कॉमन की है डी ते ए दे एलिमेंट्स सो इन्हां च 15 कॉमन है दोवां दे विच 15 कॉमन है सो 15 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਚਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ b c ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ b c ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁਣ b ਤੇ c ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਥੋੜੇ ਕੰਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ b ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ 4 8 12 16 और 20 एंड अपनी को c दे एलिमेंट्स केड़े ने 2 4 6 8 10 12 14 और 16 ये अपनी को दो एलिमेंट्स ने इन्हां दे बिटवीन सॉरी दो सेट नहीं अपन इन्हां दे बिटवीन डिफरेंस फाइंड करना है b c फाइंड करना दोवां सेट दे विच कॉमन की आ रहा है पहला कॉमन देखो अपनी को 4 दोवां सेट दे विच कॉमन है 8 दोवां सेट दे विच कॉमन है 12 दोवां सेट दे विच कॉमन है एंड 16 दोवां सेट दे विच कॉमन है सो b दे बाकी एलिमेंट्स केड़े बचे ने ओनली 20 जो कॉमन एलिमेंट्स ने और नहीं लिखने जो बाकी एलिमेंट बचदा सिर्फ ओही लिखना हुंदा अपन डिफरेंस वाले केस हुन अपन ते b दे एलिमेंट ते क्यों वर्क कीता क्योंकि अपन b c फाइंड करना सी ये भी हो गया हुन नेक्स्ट अपन करना b d b माइनस d ते वर्क करना आ दो बिटवीन एलिमेंट्स हम b d फाइंड करना ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ b d ਕਰਨਾ ਸੋ ਆਪਾਂ b ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ b ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਸੌਰੀ 20 ਕਾਮਨ ਹੈ देखो ध्यान 20 कॉमन है सो बाकी एलिमेंट्स एज इट इज आ जाएंगे नेक्स्ट ਆਪਾਂ करना है c ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ b ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ डिफरेंस फाइंड करना c ਤੇ b ਦਾ ਹੁਣ ਜੋ c ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਲ 2 4 6 8 10 12 14 और 16 एंड बच्चे अपनी कोल b ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ 4 8 12 16 और 20 ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਦੇਖੋ ਕਾਮਨ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ c ਦਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ b ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ 8 ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ 12 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ 16 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਬਾਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ 4 ਇਸ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਬਾਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ 4 ਚੋਂ 4 ਗਿਆ 0 8 ਚੋਂ 8 ਗਿਆ 0 12 चो 12 गया 0 16 जो 16 गया 0 सो डिफरेंस किवें फाइंड करीदा ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜੋ ਬਾਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ 2 6 10 और 14 ये अपने को क्या आ गया c d ये भी हो गया अपने को 3 क्वेश्चंस बचे नहीं अपन ये कर देंगे और नेक्स्ट देखो ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ d b ਹੁਣ ਆਪਾਂ d ਤੇ b ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ d ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗਿਵਨ ਨੇ 5 10 15 और 20 ਐਂਡ b ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗਿਵਨ ਨੇ 4 8 12 16 और 20 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੋ d ਦਾ ਕੋਈ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਜੋ b ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 5 भी नहीं आ रहा 10 भी नहीं आ रहा 15 भी नहीं आ रहा और 20 आ रहा ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 20 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ d ਦੇ ਲਿਖਨੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚਣਗੇ 5 10 और 15 ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ c d ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ
चलो आप रब करके कर लेने हैं। 2 क्वेश्चन बचते हैं, आप 2 पार्ट सॉरी वो कंप्लीट करते हैं। देखो अपन इन्हां दे विच की क्या C माइनस D फाइंड करना, इन्हां दोवां दे बिटवीन डिफरेंस। C दे एलिमेंट्स अपन नूं किहड़े गिवन ने 2 4 6 8 10 12 14 और 16 एंड D दे एलिमेंट्स अपन नूं किहड़े गिवन ने 5 10 15 और 20। यस हुण आपां इन्हां दे बिटवीन डिफरेंस फाइंड करना। देखो किवें करांगे, हुण इन्हां दे बिटवीन कॉमन की आपां वो देखदे हां, जो 10 है इन्हां दे बिटवीन कॉमन है और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो 10 चो 10 क्या 0 एंड बाकी C दे जो भी एलिमेंट्स ने इनदे विच लिख देने ने 2 4 6 8 12 14 और 16। हुण आपां इत्थे C दे एलिमेंट लिखांगे क्योंकि आपां C माइनस D कर रहे हैं। जो इत्थे फर्स्ट टर्म होगी आपां उनदे एलिमेंट से वर्क करांगे एंड नेक्स्ट इज आपां करना है D माइनस C। यस हुण जिवें D माइनस C करना आपां, हुण कोई भी D दा एलिमेंट जो इनदे विच प्रेजेंट है ओनली 10 कॉमन है। सो बाकी जो D दे एलिमेंट्स ने वो इनदे विच आ जाणगे। अगे आप C माइनस D किया तो आप सारे C दे एलिमेंट लिखे सी, बट हुण आप D माइनस C कर रहे हैं तो सारे इत्थे एलिमेंट अपने को D दे होंगे। जो कॉमन एलिमेंट सी कॉमन एलिमेंट नु कॉमन एलिमेंट चो माइनस करना है, बाकी की आ जाएगा ओवे ही आ जो टर्म फर्स्ट लिखी आप उनके एलिमेंट लिखने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अपने को क्वेश्चन नंबर 9th भी कंप्लीट हो गया। बच्चे अपने को क्वेश्चन नंबर 10th है, इनदे विच अपन नु 2 सेट गिवन है। स्टेटमेंट अपन की क्या है, इफ x सेट है एक अपने को y सेट है, जो x सेट दे एलिमेंट ने उन्हें a b c and d एंड जो y सेट दे एलिमेंट ने f b d and g। ਆਪਾਂ ਇਹ 3 ਪਾर्ट है ये 3 फाइंड करनी है। x माइनस y दे विच डिफरेंस फाइंड करना है, y माइनस x फाइंड करना और x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। सो आप फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट पार्ट इनका आप x माइनस y फाइंड करनी है। देखो इनदे विच x दे किहड़े एलिमेंट्स ने अपने को a b and c और d ते अपने को y दे किहड़े एलिमेंट्स ने f b d and g। आप इनदे विच की फाइंड करना है डिफरेंस x माइनस y दे बिटवीन डिफरेंस फाइंड करना। देखो इना बिटवीन कॉमन एलिमेंट्स किहड़े ने b और d, जो दोवां सेट दे विच की आ रहा है कॉमन एलिमेंट आ रहा है। सो बाकी एलिमेंट्स किहड़े बचने, जो b चो b नु माइनस करिए अपने कोल की बचे 0 बचिया एंड अगर आप d चो d नु माइनस करिए ते अपने कोल 0 बचिया। बाकी एलिमेंट किहड़े बचदे ने x दे a और c, जो इन्हां दा डिफरेंस की आ गया a एंड c एलिमेंट्स। इत्थे ਆਪਾਂ x दे एलिमेंट लिखांगे क्योंकि अपने कोल फर्स्ट टर्म x है। डिफरेंस दे विच बच्चे मैं तुहानू बार-बार दस रही हां, डिफरेंस दे विच आपां की करदे हां, आपां कॉमन एलिमेंट दे विचों कॉमन एलिमेंट नू माइनस करना है। एक होर आपां समझ सकदे हां कि आपां फर्स्ट डिजिट जो फर्स्ट अपने कोल टर्म आ आपां उनदे एलिमेंट लिखने हैं एंड जो कॉमन एलिमेंट है बस ओनू नहीं लिखना। क्लियर, हुण अपने कोल सेकंड पार्ट अपने कोल इत्थे की है, आपां इत्थे करदे हां आपां y माइनस x फाइंड करना। जो y दे एलिमेंट्स ने किहड़े ने अपने कोल f b d और v कर्ली ब्रेसेस एंड जो x दे एलिमेंट ने वो किहड़े ने अपने कोल a b c और d। हुण इन्हां दे बिटवीन कॉमन की है अपने कोल b और d, दोवां सेट दे विच कॉमन है। आपां y माइनस x लिखना है, मींस y दे टर्म लिखनी है आप y दियां, क्योंकि फर्स्ट टर्म अपने को y है। सो y दे एलिमेंट अपन लिखने हैं कॉमन एलिमेंट्स नु छड्ड के, बाकी जो एलिमेंट्स बचदे ने वो अपन डिफरेंस दे विच लिखने हुंदे ने। क्लियर, f और g बचिया सी वो अपन डिफरेंस दे विच लिख लिया। थर्ड अपने कोल की पार्ट सीगा, देखो थर्ड पार्ट अपन x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। x इंटरसेक्शन y, x दे एलिमेंट किहड़े ने अपने कोल a b and c और d एंड y दे एलिमेंट्स ने अपने कोल f b d और g।
बच्चे इंटरसेक्शन दे विच आपां की करदे आ, जो दोवां सेट दे बिटवीन कॉमन एलिमेंट्स हुंदे ने वो आपां इंटरसेक्शन दे विच लेने आ। देखो किवें x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। देखो a b c और d इंटरसेक्शन f b d और g अपने को की आ गया, दोवां सेट दे बिटवीन की कॉमन है b और d, सो इन्हां दे इंटरसेक्शन दी वैल्यू अपने को की आ जांदी है b और d आ जाती है, क्योंकि इंटरसेक्शन दे विच आपां ओनली कॉमन एलिमेंट्स ही लेने हुंदे है। इहदे नाल अपना क्वेश्चन नंबर 10th भी कंप्लीट हो गया। हुण आपां वेखदे एक्सरसाइज 1.4 दा क्वेश्चन नंबर 11। बच्चे अपने को क्वेश्चन नंबर 11 दा स्टेटमेंट देखो, आपां नूं की गिवन है, इफ r is a set of real number and q is a set of rational number, then what is r minus q। इधर इथे अपन क्या, इसका मतलब ना अगर r अपने को रियल नंबर दा सेट है एंड q अपने को रैशनल नंबर दा सेट है, देन r माइनस q अपने को की होगा। अपन को आ स्टेटमेंट गिवन है कि अपने को r माइनस q की होगा। r माइनस q की है, देखो इथे अपन किवें क्या r जो रियल नंबर दा सेट है एंड जो q और रैशनल नंबर दा सेट है, अगर अपन रियल नंबर दे सेट विचों रैशनल नंबर दे सेट नु माइनस करते हैं ते अपने कोल केड़ा सेट आंदा है। आपां इहदे विच ए दसना है कि अगर अपन रियल नंबर दे सेट विचों रैशनल नंबर दे सेट नु माइनस करते हैं अपने कोल केड़ा सेट आऊगा। देखो अपन किवें लिखांगे, सेट बिल्डर फॉर्म दे विच लिखांगे, द सेट ऑफ x such that x is a set of रियल नंबर, x की है रियल नंबर दा सेट है और रियल नंबर एंड माइनस करके अपने को किया जो द सेट ऑफ x such that x is a set of रैशनल नंबर, जो अपने को क्या वो रैशनल नंबर दा सेट है। अपने को ए वाली कंडीशन अपन दित्ती है, अगर अपन रियल नंबर दे सेट विचों रैशनल नंबर दे सेट नु माइनस कर दिया अपने को केड़े मतलब केड़ा सेट आंदा है। हुण ध्यान नाल देखो, रियल नंबर केड़े नंबर हुंदे ने, रियल नंबर की हुंदी है द वैल्यू नंबर व्हिच कैन रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। देखो रियल नंबर केड़े नंबर हुंदे ने, ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਡੀਪਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਟ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਵਿਚ ਕੈਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਨ ਅ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 0 1 2 3 -1 -2 पॉइंट वाले नंबर एक्सेट्रा जिन्ने भी यूनिवर्स दे विच नंबर है वो रियल नंबर दे अंडर ही होंदे ने। और रियल नंबर है जो वो दो टाइप्स के हुंदे ने, जो रियल नंबर है वो दो टाइप्स के हुंदे ने, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर नु डिनोट करते हैं कैपिटल आर नाल। जो रियल नंबर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, वन इज रैशनल नंबर, एक अपने को रैशनल नंबर हुंदा है, सेकंड वन इज इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर नु अपन डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू नाल एंड इरेशनल नंबर नु अपन डिनोट करते हैं टी नाल। ਹੁਣ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ p1 q ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ q not equal to 0, ਮੀਨਸ ਜੋ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਜੋ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬਚਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਚੋਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਨਲੀ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣਦਾ, ਇਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਚਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ r q ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਨਸਰ, the set of x such that x is a set of irrational number, irrational number अपने को irrational number ਦਾ सेट बचता है। देखो ਐਵੇਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ r q t, क्योंकि irrational number ਨੂੰ ਆਪਾਂ t ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਜੋ r ਹੈ ਉਹ ਸੈਟ ਹੋਵੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਾ
एंड जो क्यू आ वो सैट होवे इरेशनल नंबर दा, then r minus q इन्हां दोवां दे बिटवीन डिफरेंस की आऊगा, किहड़ा सैट आऊगा अपने कोल। देखो रियल नंबर की हुंदा, रियल नंबर एक वैल्यू हुंदी है जिन्हों आपां नंबर लाइन ते रिप्रेजेंट करदे हां। नंबर लाइन जिंदे इत्थे 0 हुंदा एंड राइट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यूज और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव वैल्यूज, मींस जिन्नियां भी वैल्यूज ने यूनिवर्स दे विच वो रियल नंबर दे अंडर हुंदियां। हुण रियल नंबर नूं आपां क्लासीफाई करदे हां दो पार्ट्स दे विच, वन इज रैशनल नंबर एंड सेकंड वन इज इरेशनल नंबर। जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जो आप रियल नंबर दे विचों रैशनल नंबर नूं माइनस करते हैं अपने को इरेशनल नंबर का सेट बचता है। इहदे नाल अपना क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। ओनली वन क्वेश्चन बचे एक्सरसाइज 1.4 दा, वो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओनली वन क्वेश्चन पेंडिंग आप करते हैं बच्चे। अपने को हुण क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट देखो अपन की क्या है। State whether each of the following statement is true or false. Justify your answer. इनके विच थल्ले अपन कुछ पेयर ऑफ सेट दिखते हैं, ये अपन ट्रू फॉल्स करने हैं, मींस दसना ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। जो क्वेश्चन दे विच स्टेटमेंट दिखती है वो सही है या गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछे, सेकंड इन्होंने पूछे जस्टिफाई योर आंसर, अपना आंसर भी जस्टिफाई करो। सो अपन क्वेश्चन 1 दे विच दो सेट गिवन ने। फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स ने 2, 3, 4 और 5 एंड सेकंड सेट के एलिमेंट ने 3 और 6। दसना है कि डिसजॉइंट सेट ने, डिसजॉइंट सेट देखण लई आपां की करदे हुंदे सी, आपां A इंटरसेक्शन B फाइंड करदे सी। अगर वो इक्वल टू 5 होंदा सी तो डिसजॉइंट सेट हुंदा सी। सो पहला आपां नूं फर्स्ट स्टेप दे विच पहला आपां नूं की करना पैना है, इन्हां दे बिटवीन इंटरसेक्शन फाइंड करना पैना है। अगर इक्वल टू 5 आ गया मींस ये डिसजॉइंट सेट है, अगर नॉट इक्वल टू 5 आया मींस ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। सो पहला अपन दोनों सेट का की करांगे इंटरसेक्शन फाइंड करांगे। फर्स्ट सेट के एलिमेंट ने 2, 3, 4, 5 एंड सेकंड सेट के एलिमेंट्स ने 3, 6। ये अपनी कोल की हो गया इंटरसेक्शन का सिंबल पुट्ठा जी। इंटरसेक्शन के बिटवीन ਆਪਾਂ कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। हुण इन्हां दोवां दे बिटवीन की है, कॉमन की है 3। सो ये 3 आ रहा है, 3 नॉट इक्वल टू 5 है, 3 5 इक्वल नहीं है, ता करके ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। सो आप की लिखांगे फॉल्स। आ तुसी करके दिखा दियो, द पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट, द पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट, डिसजॉइंट ਤੇ ਫਾਲਸ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੈਟ ਗਿਵਨ ਨੇ। फर्स्ट सेट ਦੇ एलिमेंट्स ने अपनी कोल A E I O U एंड सेकंड सेट ਦੇ एलिमेंट्स ने अपनी कोल A B C D। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ डिसजॉइंट सेट है कि नहीं है, ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ A B C और D, इन्हां दे बिटवीन इंटरसेक्शन फाइंड करो। इन्हां दोवां दे बिटवीन कॉमन की आ रहा है, जो A है दोवां सेट दे विच प्रेजेंट है, दोवां सेट दे विच कॉमन आ रही है। सो भी नॉट इक्वल टू 5 हो गया, मींस इनदे विच कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। ये एम्प्टी सेट नहीं है, एम्प्टी सेट जिन्ने विच कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हुंदा। सो इनदे विच ता एलिमेंट प्रेजेंट है, सो नॉट इक्वल टू 5 है, मींस इन्हां दी स्टेटमेंट की होगी फॉल्स। The pair of set is not disjoint. आगे तुसी लिख दियो नाल, because A is equals to A is not equal to 5. Set is not equal to 5. आप तुसी रीजन आप करके देखना, रीजन भी देना नाल। हुण आपां वेखदे हां दा थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 दा थर्ड पार्ट। बच्चे हुण अपने कोल क्वेश्चन नंबर 12 है, इहदे विच ही आपां पता करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। इहदे विच आपां नूं दो सेट गिवन नहीं, आपां डिसजॉइंट फाइंड करना है, मींस ये डिसजॉइंट सेट है कि नहीं आपां दसना है। सो आपां की करांगे, दो आपां नूं पहला आपां इन्हां दे बिटवीन की करना होवे डिसजॉइंट फाइंड करना है। सो थोड़ा देखो 2 6 10 और 14 एंड दूजे सेट दे एलिमेंट ने अपने कोल 3 7 11 और 15। इन्हां दे बिटवीन डिसजॉइंट फाइंड करना है। देखो इन्हां बिटवीन कोई एलिमेंट कॉमन है,
नहीं है, मीन्स इक्वल टू 5 हो गया क्योंकि कोई एलिमेंट ही कॉमन नहीं है, मीन्स ये एम्प्टी सेट होगा, इस सेट के कोई एलिमेंट ही नहीं होएगा, ਤਾਂ करके इक्वल टू एम्प्टी सेट आ गया, ਤਾਂ करके स्टेटमेंट की है ट्रू है। एंड आ दे दियो इनका की है रीजन है कि जस्टिफाई करता ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ कि इक्वल टू 5 आ रहा है, ये सोल्यूशन है ਇਹਦਾ। एंड नेक्स्ट सेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, फर्स्ट सेट ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ एलिमेंट्स ਕਿਹੜੇ ਗਿਵਨ ਨੇ 2 6 और 10 एंड सेकंड सेट ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एलिमेंट ਨੇ 3 7 और 11। ਇਹ डिसजॉइंट है ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ इंटरसेक्शन फाइंड करना पैना क्योंकि ਆਪਾਂ डिसजॉइंट ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ इंटरसेक्शन फाइंड ਕਰਾਂਗੇ। फर्स्ट सेट ਦੇ एलिमेंट एंड सेकंड सेट ਦੇ एलिमेंट ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 7 और 11। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਿਟਵੀਨ ਕੋਈ एलिमेंट कॉमन आ रहा है, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, नहीं आ रहा, सो इक्वल टू ਕਾਦੇ ਹੋਏਗਾ 5 ਦੇ, मींस ये की है ट्रू, मींस ये ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है कि ये डिसजॉइंट है, ਤਾਂ ਕਰਕੇ स्टेटमेंट की ट्रू है, द पेयर ऑफ सेट इज डिसजॉइंट। जिथे ਆਪਾਂ ਨੂੰ डिसजॉइंट फाइंड ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ फाइंड करनी है। अगर अपनी को दोनों सेट का इंटरसेक्शन 5 ਦੇ इक्वल ਹੁੰਦਾ मींस ये डिसजॉइंट है, अदरवाइज डिसजॉइंट सेट नहीं है। इसके नाल ही अपनी एक्सरसाइज 1.4 सेट सी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ एक्सरसाइज 1.5 ਦੀ इंट्रोडक्शन। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ एंड चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। एंड जो मेरे नोट्स ने एक्सरसाइज 1.4 ਦੇ मैं अपलोड कर दूंगी एक शॉर्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ।